परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Today's for our meditation, shall we all open our Bibles to Exodus chapter 4. आज के ध्यान के लिए निर्गमन उसका 4 अध्याय। Exodus chapter 4 verse 2 to 4. निर्गमन 4 उसका 2 से लेके 4 वचन। Exodus chapter 4 verse 2 to 4. निर्गमन 4 अध्याय 2 से लेके 4 वचन। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਡਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। And the Lord said unto him, What is it that is in thine hand? And he said, A rod. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. And Moses fled from before it. The Lord said to him, What is that in your hand? He said, A staff. And he said, Throw it on the ground. So he threw it on the ground, and it became a serpent, and Moses ran from it. यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उससे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर अपनी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We all know about Moses' life. हम सबको मूसा की जिंदगी के बारे में पता है। I want to ask one question. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा For children. बच्चों के लिए। How much year Moses lived on this earth? मूसा इस दुनिया में कितने साल जीवित रहा? First years. लड़कियां बताओ पहले। How much? How many years Moses lived on earth? Boys. 120 weeks. 120 weeks. Very good. Clap. ताली बजाए। 120 years Moses lived on this earth. 120 साल मूसा इस दुनिया में जिंदा रहा। We can divide it into 3 parts. और 120 को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 40 plus 40, 40 plus 40, total 3 division we can divide. 40 साल के 3 हिस्सों में हम उसकी जिंदगी को बांट सकते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। First 40 years he lived on this Pharaoh's महल. और पहला जो 40 साल थे उसने जो फिरौन के महल में बिताए। Second 40 years he lived on this wilderness. और उसके अगले 40 साल उसने जंगल में बिताए। Next 40 years he led the people of Israelites. और उसके अगले 40 साल उसने इस्राएलियों को वहां से मिस्र से बाहर निकाल के लाया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When he flee away from the Pharaoh's palace, जब वो फिरौन के महल को छोड़ के भागा था, while he was leading the shepherd, और जब वो एक चरवाहा बन के जिंदगी व्यतीत कर रहा था, God appeared unto Moses. और तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। At the time he said unto Moses, what is your hand? तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि तेरे हाथ में क्या है? What is that thine hand? तेरे हाथ में क्या है? And he said, rock. और उसने कहा, लाठी। Cast it. The Lord said unto Moses, cast it on the ground. परमेश्वर ने कहा कि इसको जो है जमीन पे डाल दे। And he cast it on the ground. और उसने उसको जमीन पे डाल दिया। That rod became a serpent. और वही जो लाठी थी वो सांप बन गई। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। So many days he carrying what is the rod. He is not carrying the rod. He carrying the serpent. और
बहुत सारे दिन जो है मूसा उसी लाठी को लिए हुए अपने साथ रहा, और इसका मतलब है वो उसी सांप को लिए हुए अपने साथ रहा। When God said unto Moses, cast it on the ground. और जब परमेश्वर ने उसे कहा कि उसको जमीन पे डाल दे, That rod became a serpent. और तब वो जो लाठी थी वो सांप बन गई। And the Lord said unto again what he said unto Moses. और परमेश्वर ने फिर से मूसा को कहा, What he said unto Moses. और कि तेरे हाथ में क्या है? What he said unto Moses. क्या परमेश्वर ने उसे कहा? Put forth thine hand and take it by the tail. और परमेश्वर ने फिर उसे कहा कि अपना हाथ बढ़ाकर उसको फिर से पकड़ ले। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। I want to divide 3 parts. और मैं इसको 3 हिस्सों में बांटूंगा। As Moses' life 3 parts. और जैसे मूसा की जिंदगी 3 हिस्सों में बटी है, I want to divide that 3 parts about this rod. और ये जो लाठी वाली स्टोरी है इसमें भी मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। First of all, that rod became a serpent. और पहला हिस्सा ये है कि वो लाठी जो है वो सांप बन गई। Secondly, that rod, by this rod, God do a great and miracle things by this rod. और दूसरा हिस्सा ये है कि इसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े अचंभे काम किए। Lastly, this rod became flourishing and budded and became fruitful. और तीसरा ये हिस्सा है कि वही लाठी जो है बहुत बढ़ गई और एक फल लेके आई। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। First of all, we can see पहला हम लोग देखते हैं this rod. We so many days he carrying this rod and leading the flocks. पहला हम लोग देखते हैं कि मूसा ने वही लाठी बहुत देर तक अपने पास रखी और भेड़ों को चराता था। When God said unto Moses, you cast it on the ground. जब परमेश्वर ने उसे कहा कि इसको जमीन पे डाल दे लाठी को, become a serpent. और तब वो सांप बन गई। And said again and said God said unto Moses. और फिर से परमेश्वर ने मूसा को कहा, Put forth thy hand and take the tail. फिर से परमेश्वर ने कहा कि उसको लाठी हाथ बढ़ा के लाठी को उठा ले। Take it by the tail. उसको पूंछ से पकड़ ले। God did not say you caught the head. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सांप के जो है उसके मुंह को पकड़। Listen carefully. ध्यान से सुने। In this day, so many people how they put that serpent in their hand. आज के दिनों में बहुत सारे लोग सांप को अपने हाथ से कैसे पकड़ते हैं? They take the hand, they take the head by hand. वो सांप को सिर से पकड़ते हैं। But what the Lord said unto Moses. लेकिन परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? You take the tail by hand. लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि अपने हाथ से उसकी पूंछ को पकड़ ले। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। It is normal. It is not normal life. ये कोई आम जिंदगी नहीं है। God by this God also God do a miracle. By this saying, God wants to do a great miracle. ये जो परमेश्वर ने कहा इसके द्वारा भी परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। If he took that head by his hand. लेकिन अगर जो मूसा सांप को उसके सिर से पकड़ता, that head also giving so many thoughts, so many words. जो सिर है वो भी बड़े चीजें कह सकता। By his head, so many ideas it will give. परमेश्वर उसके सिर के द्वारा भी बड़े आइडियाज उसे दे सकता था। Praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। When we go to 2 Corinthians, जब हम दूसरा करंथियों में जाते हैं, 2 Corinthians chapter 11, दूसरा करंथियों उसका 11 अध्याय 2 to 4, kindly read that verse. 2 से 4 हम लोग पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 11, दूसरा करंथियों 11 verse 2 to 4. 2 से 4 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया,
या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। But I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, By his cunning, by his subtlety, that serpent he cunningly deceived Eve. और जो सांप ने अपनी चतुराई से, अपने जो है चालाकी से उस हवा को बहका दिया था। Whenever we come in His presence, जब भी हम इसकी परमेश्वर की उस हजूरी में आते हैं, we are hearing the word of God and so many truth and doctrines. जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, हम बहुत सारी सच्चाइयाँ और बहुत सारे उपदेश, सच्चे उपदेश God सुनते हैं। revealing so many truth and revelation in His presence. परमेश्वर अपनी हजूरी में बहुत सारे सच्चाइयाँ हम पे प्रकट करता है। After we are hearing the word of God, we are came out from the presence of God. So many subtlety that we want to deceive you. और परमेश्वर की हजूरी से जाने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धोखा देने के लिए तैयार रहती हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's why the Lord said unto Moses, "You caught his tail." इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि सांप को उसकी पूंछ से पकड़ना। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। On the cross of Calvary, God bruised the head of the Satan. कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचला। That's why we should know how the devil wants to deceive us. इसीलिए हमें जानना चाहिए कि कैसे जो है शैतान हमें बहका सकता है। In these days, always we should be vigilant and careful. हम हरेक को इतना जो है समझदार बनना चाहिए कि कैसे In this days we must be sober and vigilant. हमेशा हमें जो है होशियार रहना कि कैसे शैतान हमें बहका सकता He है। wants to deceive us. वो हमें धोखा देना चाहता है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's why we should always be sober and vigilant. इसलिए हमेशा हमें जो है चतुर बन के रहना है। That's why the Lord said unto Moses, "Caught thy hand, put forth thy hand by thy tail." इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि सांप को उसकी पूंछ से पकड़ना। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। When he caught his tail, जब हम उसकी पूंछ को पकड़ेंगे, it became a rod. It became a rod. पूंछ को पकड़ने के बाद ही वो लाठी बन जाएगी। The serpent became a rod. और वही सांप जो है लाठी बन जाएगी। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When we obey this word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे, God will do a great and miracle things in our life. परमेश्वर महान और अद्भुत काम आपकी जिंदगी में करेगा। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In these days we must be sober and vigilant. और इसीलिए इन दिनों में हमें बहुत ही चालाक बन के रहना। We should know the cunning of the subtlety of the devil. हमें हमेशा जानना है कि शैतान की चतुराई क्या है। We should overcome all the cunningness. और शैतान की हर एक चतुराई पे हमें विजय प्राप्त करनी है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Secondly, what do we read there? और दूसरा हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं? By this rod. उसी लाठी से। By this rod, God did a great and miracle, wondrous things. और उसी लाठी से परमेश्वर ने बड़े और अचंभे काम किए। By this rod only, before Pharaoh, he do a miracle. फिरौन के सामने परमेश्वर ने उसी लाठी के द्वारा चमत्कार किए। When we come to Exodus chapter 7, निर्गमन 7 अध्याय में जब जाएंगे हम, the Moses cast the rod before the Pharaoh. और मूसा ने वही लाठी को फिरौन के सामने दिखाया। It became a serpent. और वो जो है सांप बन गई। When that see that Pharaoh, all that rod became a serpent. और जब फिरौन ने देखा कि वही लाठी सांप बन गई है, He called all the physician. उसने सारे अपने Magician. उसने सारे जादूगरों को बुलाया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When we read Exodus chapter 7 verse 10 onwards, निर्गमन 7 अध्याय उसके 10 वचन से आगे जब पढ़ेंगे, there we can see वहाँ हम लोग देख सकते हैं Pharaoh also called the wise men and sorcerers. और फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों सबको बुलाया। Now the magicians of Egypt, they also did like same manner with their enchantments. और मिस्र के जादूगरों ने भी वैसे तंत्र मंत्र करके वैसा ही किया। There also we can see और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते they हैं also caused every man his rod.
they also caused every man their rods. और उन लोगों ने भी वैसा ही जैसे मूसा ने किया वैसा ही किया। They become serpents. उन्होंने भी अपनी लाठियों से सांप को बना दिया। But Aaron's rod swallowed up their rods. लेकिन जो हारून की लाठी थी उसने उन सभी लाठियों को खा लिया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In this rod, that is a great mighty power in the rod. और उसी लाठी में एक बहुत ज्यादा पावर थी। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That same power and authority God gave in our life. वही शक्ति और अधिकार परमेश्वर ने भी हमारी जिंदगी में दिए हैं। That same power God gave in our life also. उसी शक्ति को परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में भी दिया है। By this rod we can do a great and wondrous miracle things in our life. उसी लाठी के द्वारा हम भी जो है बड़े बड़े काम कर सकते हैं। Now we can see how many miracles doing by this rod. और अभी हम लोग देख सकते हैं कि मूसा ने कितने चमत्कार इस लाठी के द्वारा किए। Before the rod doing a great miracle, इससे पहले कि वो लाठी बड़े चमत्कार all करती, the magicians and sorcerers they also put the rod. That rod swallowed Aaron's rod. और वो सारे जो जादूगर और पंडित थे उन्होंने भी वैसे लाठी के द्वारा सांपों को बनाया, लेकिन जो हारून की लाठी थी उसने सब लाठियों को खा लिया। Aaron's rod swallowed up all the magician rods. हारून की लाठी ने सारे जादूगरों की लाठियों को खा लिया। That is the first miracle in this verse we can see. ये पहला जो चमत्कार है हम इस अध्याय में देख सकते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। God also gave that power and authority in our hand. परमेश्वर ने भी एक अधिकार और एक शक्ति उसके हाथों में दी थी। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In this Egypt, ये जो मिस्र था, 10 wonder things to doing this rod only. और मिस्र में 10 प्रकार के अद्भुत काम इस लाठी के द्वारा हुए। First of all, we see पहला हम लोग देख सकते हैं the 15th onwards. 15 वचन से आगे जब same chapter, Exodus chapter 7, same chapter. वही अध्याय निर्गमन 7 उसका 15 से आगे 15 to 18. 15 से 18 में जब पढ़ते He हैं, smote the rod upon the water. उसने जो है उसी लाठी को पानी के ऊपर मारा Became a blood. और वो जो पानी है लहू बन गया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। All the Egyptians are worshipping a water god. उस समय में सारे जो मिस्री थे वो उस पानी के भगवान को मानते थे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। But this rod only, God doing a great things in that Egypt. लेकिन इसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र में बड़े काम किए। God gave authority in our life. परमेश्वर ने भी हमारी जिंदगी में अधिकार दिए हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Through this rod only, God brought up from the Egypt. इसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने उनको सबको जो मिस्र से बाहर All the निकाला। people of Israel, they were bondage of the Pharaoh. जब जो इसराइली थे वो फिरौन के बंधन में थे, By this rod only, इसी लाठी के द्वारा God brought out from the Egypt. परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। When they came from Egypt, जब वो मिस्र से बाहर आए before they saw a great Red Sea. और बाहर आने के बाद उन्होंने बड़ा एक लाल समुद्र देखा। Both sides the mountains. और उसके दोनों तरफ जो है बड़े बड़े पहाड़ थे। Backward there are pharaohs and these armies they followed. पीछे की तरफ फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। There is no way to escape from these enemies. ये जो दुश्मनों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। All the people have cried unto Moses. और वो सारे लोग जो है मूसा के प्रति बुड़बुड़ाने लगे। At the time what the Lord said unto Moses, उस समय परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? You show the rod upon the Red Sea. तू इस लाठी को जो है लाल समुद्र के ऊपर मार। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। He showed the rod upon the Red Sea. उसने वही लाठी की जो है लाल समुद्र के ऊपर मारी। The Red Sea were divided into 2 parts. और लाल समुद्र 2 हिस्सों में बट गया। That is the second miracle that the Lord doing through this rod. ये दूसरा चमत्कार है जो परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा किया। Exodus chapter 14 verse 16, there we can see. निर्गमन 14 का 16 में हम लोग पढ़ते हैं। Exodus chapter 14 verse 16. निर्गमन 14 अध्याय का 16 वचन। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे।
Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In our life also we can face so many problems, so many obstacles. हमारी जिंदगी में हम बड़ी सारी दिक्कतें, बड़ी सारी मुसीबतों का सामना कर At सकते that हैं। time we do not know what do we do. और उन परेशानियों में पता नहीं लगता कि हमें क्या करना है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। What is this rod? और ये लाठी क्या है? This rod is the power of God. ये जो लाठी है ये परमेश्वर की शक्ति This है। rod is the word of God. ये लाठी परमेश्वर का वचन है। This rod, the promise of God. यही लाठी परमेश्वर का वायदा है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Where there is no way, जब यहाँ कोई रास्ता नहीं होता, God will open a way परमेश्वर वहाँ रास्ता को निकालते हैं through this rod only. और इसी लाठी के द्वारा रास्ते को निकालते हैं। That's why we should always lean upon this rod. Otherwise, we should always lean upon the promises of God and word of God. और इसीलिए हमेशा हमें इस लाठी के ऊपर निर्भर रहना है या परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसके वायदों के ऊपर निर्भर रहना है। Where there is no way, God will open a way. जहाँ कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर वहाँ से रास्ता निकालते हैं through the word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा रास्ता Through the निकालते हैं। power of God. परमेश्वर की शक्ति के द्वारा रास्ता Praise be निकालते to हैं। His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। So thirdly, we can see तीसरा हम लोग क्या देखते हैं? when they cross over the Red Sea, जब उन्होंने लाल समुद्र को पार कर लिया they starting a journey in the wilderness. और उन्होंने जंगल में अपनी रास्ता शुरू किया। The people of Israelites, they did not do any fighting in their life और जब any battles in their life. लाल समुद्र पार करने के बाद अब तक उन्होंने कोई भी अपनी जिंदगी में लड़ाई को नहीं लड़ा था। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। First of all, when they face a battle, सबसे पहली बार उन्होंने जब जिंदगी में लड़ाई को लड़ा, at the time what they do, उन्होंने तब क्या किया? Amalekites, they came against the people of Israelites. अमालेकी आए और इसराइलियों पे हमला करने के लिए आए। At the time what Moses did, उस समय मूसा ने क्या किया? he take up the rod upon the mountain. उसने वही लाठी को पहाड़ के ऊपर ले गया। Both hands, he lifted both hands upon this hand, he carrying the rod. लाठी को उठा के उसने अपने दोनों हाथों को उठा लिया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Whenever he lift up his hands in this rod, और जब जैसे ही वो लाठी को पकड़ के अपने हाथों को उठाता था, the people of Israel get victory. और तब हाथों को उठाने के बाद इसराइली जीतते थे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। In our life also we can face so many battles in our life. हम भी अपनी जिंदगी में कई तरह के युद्धों को लड़ते हैं। Through the family, परिवार के द्वारा, through the neighbors, पड़ोसियों के द्वारा, through the co-workers, और अपने जो कलीग्स हैं उनके द्वारा। through the so many ways we can see battles. अलग अलग तरह से हम लोग युद्धों को लड़ते हैं। You may face so many battles. आप कई तरह की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। Whenever you face the battle, जब भी आप लड़ाई को लड़ें, lift up your hands and praise God. अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की स्तुति करें। Lift up your hands and carrying the rod, then only we can victory. अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की स्तुति करें, उस लाठी को उठाएं और Through आप the prayer life, अपनी प्रार्थना वाली जिंदगी के द्वारा, through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा, Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Fourthly, when we see, चौथा हम लोग क्या देखते हैं? we should use this rod in all the circumstances. और हमें इस लाठी को हर परिस्थिति में इस्तेमाल करना है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When they did not have water, the people of Israel, जब इसराइलियों के पास पानी नहीं था, what Moses did, तब मूसा ने क्या किया? he smote the rock through the rod. उसने जो है चट्टान पे उसी लाठी को मारा। Kindly read, that was Exodus chapter 17. पढ़ेंगे उस वचन को, निर्गमन 17 अध्याय, Read verse 6th verse. उसका 6 वचन पढ़ेंगे। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इसराइल के विरुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Behold, I will stand before thee there upon the rock.
और मैं जो है तेरे सामने रो पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। And thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकल आएगा। that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israelites. और लोगों ने पानी पिया, और मूसा ने वही बूढ़े लोगों के सामने ऐसा देखते किया। In our life also in our life we so many needs in our life. हमारी जिंदगी में बहुत सारी जरूरतें होती हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We smite the rock. हमें जो है चट्टान पर मारना है। What is this rock? What is this rock? ये जो चट्टान है क्या है? The rock is Christ Jesus. ये चट्टान जो है यीशु मसीह है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Smiting means for our sake God smited. चट्टान पे मारने का मतलब है कि हमारी खातिर जो है प्रभु यीशु मसीह मारे गए। By His stripes we are healed. उसके कोड़ों के द्वारा हम लोग चंगे हुए। By the cross of Calvary we fulfill all the needs of our life. और मसीह के कलवरी क्रूस के द्वारा हमारी सारी जरूरतें पूरी हुई। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Nextly, when we see that through this Lord what the great miracle did in our life. अगला हम लोग देखते हैं कि इस लाठी के द्वारा क्या चमत्कार होता है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Day by day the Goliath stand before the people of Israel. और दिन बाय दिन जो है गोलियत इस्राएली लोगों के सामने every day he challenging to the people of Israel. हर दिन वो इस्राएलियों के सामने आके उनको ललकारता था। Who have a courage, you come and fight me. किसमें हिम्मत है कि आके मुझसे लड़े? The king Saul and his armies all they fear. और जो सारी साउल और उसकी जो सारी सेना थी वो सारी उससे डरती थी। But a little lad came before and fight against him. लेकिन छोटा लड़का दाऊद उसके सामने आया और उसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। When we go to 1 Samuel chapter 17, पहला सामुएल उसका 17 में जब जाएंगे, there we can see वहाँ हम लोग देखते हैं by the rod, by the stones only he came to fight against the Goliath. और जो वो दाऊद था वो सिर्फ कुछ पत्थरों के द्वारा उससे लड़ने चला गया। Kindly read that verse of 1 Samuel chapter 17 verse 40. पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 17 का 40 वचन। 10 वचन। 1 Samuel chapter 17 verse 40. 14 वचन। पढ़िए 40 40 वचन। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना कफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। David fight against the Goliath through the stone only. और जो दाऊद है वो गोलियत से सिर्फ पत्थरों से लड़ने चला गया। One stone he fell down that Goliath. और एक ही पत्थर के द्वारा वो जो गोलियत है वो गिर पड़ा। He overcame that one stone. और एक ही पत्थर के द्वारा दाऊद जीत गया। In his hand he have a staff. लेकिन उसके हाथ में दाऊद के हाथ में एक लाठी थी। Whenever we always I teach the children. हमेशा मैं बच्चों को सिखाता हूँ। Whenever you come in His presence, जब भी आप उसकी हुजूरी में आए, you hold the Bible. हमेशा अपनी हाथ में बाइबल को रखें। All having mobile phone, but they did not have a Bible. बहुत लोगों के पास मोबाइल फोन है लेकिन बाइबल नहीं है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Everywhere you carrying a mobile phone, but you are not carrying the word of God, that is Bible. हर एक जगह आप फोन को लेके जाते हो लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं लेके That is जाते। the Bible, that the word of God is a great weapon to overcome against the evil devil. ये जो परमेश्वर का वचन है बहुत बड़ा हथियार है शैतान को हराने के लिए। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। That's why you should always carrying this staff. That is the word of God. That is the rod. इसीलिए हमेशा इस लाठी को जो परमेश्वर का वचन है उस अपने साथ साथ लेके चलना है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Lastly, when we see आखिरी में हम लोग क्या देखते हैं? this rod, when they put in the tabernacle. यही जो लाठी है जब संदूक के ऊपर रखी गई। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। When we see Numbers chapter 17. गिनती उसका 17 अध्याय। Kindly read 8 onwards. 17 का 8 से आगे पढ़ेंगे। Number 17 chapter 8 chapter 17 verse 8. गिनती 17 का 8 से आगे पढ़ेंगे। दूसरे दिन मूसा
साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा? 3 onwards. 3 से आगे। और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी, और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के आगे, जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पात्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पात्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Here 12 rods kept in the tabernacle. यहाँ पे 12 छड़ियां जो है संदूक के ऊपर रखी Only one rod blooded buds and blossom and almonds. और 12 में से सिर्फ एक ही जो छड़ी थी उसमें वो अंगूर निकली। 8 was. पढ़ेंगे 8 वचन। Read yourself. Budded and buds and blossom and bloom. और एक ही छड़ी में कलियां फूट निकली। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। In this world also we can see everywhere we can see a church of God. और यहाँ भी इस दुनिया में हर जगह परमेश्वर का So many churches. बहुत सारे चर्च हैं। That when we put in the congregation, otherwise the tabernacle. और जब हम उसी चीज को जब संदूक के ऊपर रखते हैं, those the rod blossom and blooded. और जिस लाठी के ऊपर फूल निकलते हैं या कलियां निकलती हैं, there is a power of resurrection. और उसी में जो है परमेश्वर के जी उठने की सामर्थ है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's why we should always being in the apostles and doctrine. और इसीलिए हमेशा जो है प्रेरितों के उपदेश में हमें रहना चाहिए। We should always stand fast in the fellowship of the saints. हमेशा संतों की संगति में बने रहना चाहिए। So the people of Israelites, they murmuring against God. और इसराइलियों ने परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाते थे। Only one rod, only budded and blossom. लेकिन सिर्फ एक ही लाठी के ऊपर फूल निकले, कलियां निकली। What is that rod? उसका मतलब क्या है? What is this rod? और ये लाठी क्या है? That is the fellowship of the saints. और यही लाठी जो है संतों की संगति। That is the apostles' doctrine of apostles. और यही लाठी जो है प्रेरितों की। We should always keep on remaining in the doctrine of apostles. हमेशा हमें संतों के उपदेश में बने रहना है। Then only we should give a budded and blossom. और तभी हम लोग हमें भी कलियां निकलेंगी। When if we inherit the Zion and Jerusalem, if we inherit that Zion and Jerusalem, अगर हम चाहते हैं कि सिय्योन यरूशलेम के वारिस हम लोग we should always be in the fellowship of the saints. तो हमें हमेशा संतों की संगति में बने रहना We होगा। should always remaining in the doctrine of apostles. और हमेशा प्रेरितों के उपदेश में बने रहना Then होगा। only we can caught up in the coming of the Lord. और तभी मसीह की आगमन में हम लोग उठाए जा पाएंगे। When we read Revelation chapter 21, और जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, Revelation chapter 21 verse 14 to 16, what do we read there? 21 का 14 से 16 में जब हम पढ़ेंगे, Revelation chapter 21 verse 14 to 16. प्रकाशित वाक्य 21 का 14 से 16। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई
और ऊंचाई बराबर थी। By this rod only that measuring that the city. और वही लाठी के द्वारा उस शहर की मपाई हो रही थी। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। If we inherit the Zion and Jerusalem, अगर हम चाहते हैं कि सिय्योन यरूशलेम के वारिस we बने, should always remain the doctrine of apostles. तो हमेशा हमें प्रेरितों के उपदेश में बने रहना होगा। Shall we all kneel down in His presence? सारे घुटनों पे उसकी आए। We should always know the cunning of the devil. और हमेशा शैतान की चालाकी को समझना है। Our mind should not defile in any way. और हमारा दिमाग किसी भी तरह से धोखे में ना आए। We should always keep our mind in the doctrine and fellowship of the saints. हमेशा अपने मन को जो प्रेरितों के उपदेश और उनकी संगति में बना के रखना। We should always give room for the Holy Spirit. हमेशा पवित्र आत्मा की ओर जगह देना है। God gave a power and authority in our life. परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में अधिकार दिए हैं। God gave a power and authority in our life. हमारी जिंदगी में शक्तियां और अधिकार दिए हैं। When we read Luke the Gospel chapter 19, और जब हम लूका 19 अध्याय पढ़ते हैं, God gave a power and authority परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं to thresh the devil, शैतान के सिर को कुचलने के लिए, serpents and scorpions, और सारे जो serpents and scorpions. सांप और बिच्छुओं को रौंदने के Praise be लिए। to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। God gave a power and authority. परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार We दिया। should tread all the serpents and scorpions. सारे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार हमें दिया है। God, we should destroy the powers of darkness. हमें सारी अंधकार की शक्तियों को नाश करने का अधिकार दिया है। God gave a power and authority. परमेश्वर ने शक्तियां और अधिकार हमें We दिए should हैं। use that power. हमें उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। Let's all give room for the Holy Spirit. सारे पवित्र आत्मा के लिए जगह दें। God gave a power and authority. परमेश्वर ने शक्ति अधिकार हमें दिया। Where there was no way, the Lord do open a way. जहाँ कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर वहाँ रास्ता निकालते हैं। God through the rod. और उसी लाठी के द्वारा You must use the rod. आपको उस लाठी को इस्तेमाल You करना must है। use the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को Through इस्तेमाल the करना है। power, through the prayer of power, और उसी प्रार्थना के द्वारा शक्ति आती है। you get the victory. आप लोग फतेह को प्राप्त Prayer करेंगे। brings victory. प्रार्थना फतेह को लेके You आती should है। lift up your hands and praise God. Hold that rod in your hand. और आपको जो है अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की स्तुति करनी है। और लाठों को अपने हाथों में Whenever you lift up your hands in His hand rod, और जब भी आप लाठी को उठाकर अपने हाथों को उठाएंगे, you get victory in our life. आप अपनी जिंदगी में विजय को प्राप्त करेंगे। Let's all use that power. आप सारे उस शक्ति का इस्तेमाल करें। Let's all use that power. उस शक्ति का इस्तेमाल करें। That David hold this staff in his hand. और जो दाऊद था उसने यही लाठी को He अपने हाथ में overcome रखा। that Goliath. उसने गोलियत पे विजय पाई। God gave a power and authority. परमेश्वर ने उसे शक्ति और अधिकार You दिए। must use that power in your life. आपको उसी शक्ति को अपने इस जिंदगी में Let's इस्तेमाल all give room for the Holy Spirit. सारे पवित्र आत्मा के लिए Let's जगह all be in this fellowship of the saints. सारे संतों की संगति में बने Let's रहे। all be in the doctrines and fellowship of the saints. सारे प्रेरितों के उपदेश में और संगति में Then बने only रहे। we can caught up in His presence. तभी हम उसकी उपस्थिति में आ Shall we all submit down and praise God? अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए तारीफ करें। Hallelujah. Hallelujah. मेरा रक्षक मेरे बल की शोभा तू युद्ध के समय तू मुझे कलमत से छुड़ाता यहोवा मेरा रक्षक मेरे बल की शोभा तू युद्ध के समय तू मुझे कलमत से छुड़ाता यीशु का नाम जीना शैतान को नाश करता यीशु का नाम मुझे सदा जय मनाता यीशु का नाम जीना शैतान को नाश करता यीशु का नाम मुझे सदा जय मनाता सारा करता है तुझे तेरे पवित्र नाम यहोवा सारा करता है तुझे तेरी अति करुणा है प्रभु है कोई अति मैं करता मैं भी तेरी
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, the Gana Banja, the Bikana, the Bajana, the Gana Banja, the Gana Banja, the Bikana Banja, the Gana, the Banja, the Bikana Banja, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Shida Gana Banja, Dida Gana, Ida Banja, Dida Vikana Banja, Dida Gana Banja, Dida Gana, Ida Shida Gana Banja, Dida Vikana Banja, Dida Gana, Ida Banja, Dida Gana Banja, Dida. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. परमेश्वर हमको अधिकार और सामर्थ दिया है, उस अधिकार और सामर्थ हम इस्तेमाल करना है। अगर हम इस्तेमाल करना चाहिए तो परमेश्वर के हाथ में हम समर्पण करना। जैसा परमेश्वर बोला है, मूसा तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, नीचे डाल। तुरंत तुरंत उसको सांप को पूंछ के पकड़ा है, तुरंत उधर लाठी बन गया है। परमेश्वर का आवाज को अगर आप आज्ञा मानोगे, परमेश्वर वही अधिकार वही सामर्थ आपके हाथ में देगा। बिच्छू होने दो, सांप होने दो, कोई भी दुष्ट शक्ति होने दो, कोई भी शक्ति होने दो, कोई भी रुकावट होने दो, कोई शैतान का शक्ति होने दो, आपके सामने कोई भी दुष्ट शक्ति खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ गाएगा, अभिषेक गाएगा, जितना आप पवित्र आत्मा के लिए जगह देंगे, जितना आप हाथ में लाठी इस्तेमाल करेगा, बंद रास्ता सब खुल जाएगा। हालेलुया, थोड़ा समय हमें उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमारे बंधन को खोलने के लिए समर्पण करें। हालेलुया, करेंगे। परमेश्वर हमको दिया हुआ पवित्र वचनों के लिए हम तारीफ करेंगे। परमेश्वर हमारा हाथ में अधिकार दिया, उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हमारा हाथों को परमेश्वर बुलंद करना है, उसके लिए हम तारीफ करेंगे। हमेशा
हमेशा परमेश्वर हमारा हाथ में दिया बहुत वचनों को, वायदाओं को पकड़ते उस अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए हम सबको परमेश्वर मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। प्रार्थना के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा शैतान के ऊपर जय पाने के लिए हम सबको परमेश्वर अनुग्रह देना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आराधना शुरू से लेकर अब तक बहुत आत्मा चलाया, हमारी एक आशीष किया, उसके लिए हम धारी भरेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। तो पूरा हमारे एक परमेश्वर जय देकर चलाना चाहिए। धारी भरेंगे। परमात्मा शरीर परमेश्वर के बुलंद हाथों में सामने से तारीफ करेंगे। खुदा बेटे को आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे। स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद तारीफ कर दे खुदावंद प्रभु जी। आज भी खुदावंद जी उठने वाले दिन, सप्ताह के पहले दिन तो हमें अपने मुख में लेके आ, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दे खुदावंद प्रभु जी। हमारी जिंदगी में देखा जाए कोई आशा ही नहीं, भलाई नहीं खुदावंद, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी दया के द्वारा खुदावंद प्रभु जी अभी तक हमें जीवित रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। खास करके खुदावंद प्रभु जी मीटिंग में खुदावंद शुरुआत से लेकर आकर तक तूने बोझ उठाया, आशीष करके दिया, मीटिंग में लाए खुदावंद हर एक बहन भाई के लिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। जितने लोग खुदावंद प्रभु जी कई प्रकार के दुखों के साथ, कष्टों के साथ, बीमारी के साथ तेरे सम्मुख में आए, उनके सारे दुखों, कष्टों, बीमारियों से छुटकारा देने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद मीटिंग के खुदावंद एक एक बात को खुदावंद तूने स्वर्गीय से उनसे खुदावंद अभिषेक करके दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। गीत का सेवा का बोझ उठाया, आशीष करके दिया, आत्मा के आराधना के भाग का बोझ उठाया, हमसे तूने बातें की है, तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। गवाही की सेवा का बोझ उठाया, जितने लोगों ने गवाही में प्रार्थना की मांग की है खुदावंद उनकी सारी जरूरतों को पूरे करके देने के लिए तेरे से दुआ कर दिया। वचन की सेवा का बोझ उठाया खुदावंद प्रभु जी। वचन खुदावंद प्रभु जी हम सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ कर दिया। जैसे मूसा को खुदावंद प्रभु जी तूने कहा तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी है खुदावंद प्रभु जी। सचमुच खुदावंद प्रभु वो 40 वर्ष खुदावंद लाठी को गए खुदावंद, जो एक सांप की थी खुदावंद प्रभु जी, उसको अपने हाथ में लिए हुए चलता फिरता रहा, लेकिन जब परमेश्वर ने खुदावंद उसको लाठी को खुदावंद भूमि पर डालने के लिए कहा, तब वो जो है सांप पर गई और उसकी जब पूंछ को उठाने के लिए कहा खुदावंद, तो तभी फिर उसके हाथ में लाठी बन जाती खुदावंद। इसी प्रकार खुदावंद प्रभु जी हम भी खुदावंद प्रभु जी हमारे अपने दिमाग खुदावंद मन के अनुसार नहीं खुदावंद, हमारे खुदावंद मुंह को द्वारा नहीं खुदावंद, विचारों के द्वारा नहीं, लेकिन खुदावंद प्रभु जी तेरे खुदावंद ज्ञान के द्वारा तू खुदावंद प्रभु जी चलाने का तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। हम खुदावंद शैतान का धोखे में नहीं आना चाहिए खुदावंद। शैतान बहकाने वाला खुदावंद प्रभु जी, जैसे उसने हवा को बहकाया इसी प्रकार खुदावंद वो हमें भी बहका सकता है खुदावंद, लेकिन हम खुदावंद उसका धोखे में कभी भी ना आते हुए खुदावंद हमेशा खुदावंद प्रभु जी खुदावंद बुद्धिमानी के साथ खुदावंद चलने के लिए खुदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी लाठी जो खुदावंद जादूगर ने जब खुदावंद लाठी जब वो भूमि पर डाला खुदावंद प्रभु जी, वो सांप पर की खुदावंद जादूगर ने भी खुदावंद उसमें अपनी खुदावंद लाठी को जब भूमि पर डाला तो सांप पर की खुदावंद, लेकिन हारून की लाठी ने जो खुदावंद जादूगर की जो लाठी थी उसको निगल लिया खुदावंद करके हम देखते हैं खुदावंद। लेकिन खुदावंद प्रभु जी खुदावंद हमें बड़े एक दिया अधिकार को दिखाता है खुदावंद। इस खुदावंद प्रभु जी अधिकार के द्वारा खुदावंद प्रभु जी हम शैतान को खुदावंद शैतान के सेना के ऊपर जय पा सकते हैं खुदावंद प्रभु जी। खास करके खुदावंद लाठी जो खुदावंद तेरे खुदावंद शक्ति के सामर्थ्य को खुदावंद तेरे वचन को प्रतिज्ञा को दिखाते खुदावंद, इसके द्वारा खुदावंद हम खुदावंद सारी बातों के ऊपर जय पाने के लिए खुदावंद तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद। युद्ध में खुदावंद प्रभु जी जैसे खुदावंद युद्ध के समय खुदावंद जब वो खुदावंद मूसा ने खुदावंद प्रभु जी हाथ में लाठी लिए हुए खुदावंद पहाड़ पर चढ़ गया खुदावंद, और खुदावंद प्रभु जी जब उसका हाथ खुदावंद थक जाते थे और खुदावंद अपने हाथों को उठाता था खुदावंद, तभी इस्राएल लोग खुदावंद प्रभु जी खुदावंद प्रबल हो जाते थे खुदावंद। इसलिए हमारी खुदावंद प्रभु जी हम तेरे वादे को प्रतिज्ञा को खुदावंद वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु जी हम विश्वास करते हैं खुदावंद प्रभु जी, हम खुदावंद अपने हाथों को उठाते हैं खुदावंद स्तुति के द्वारा जय पाने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। खास करके खुदावंद प्रभु जी जैसे खुदावंद हम हमारी
मूसा ने खुदावंदा प्रभु जी और लाठी को लिया हो खुदावंदा खुदावंदा पुनरी लोगों के सामने खुदावंदा और चट्टान को मारा, चट्टान के द्वारा खुदावंदा उस खुदावंदा पानी से निकला खुदावंदा उनके सारी जरूरतों को पूरा किया खुदावंदा। इसी प्रकार खुदावंदा लाठी जो है, चट्टान जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया खुदावंदा, उसके मरने से उसके मार खुदावंदा कलवरी क्रूस पर मरने पर खुदावंदा हमारे लिए सारी जरूरतों को खुदावंदा तू पूरा करके देता है। इसलिए खुदावंदा हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंदा। इसलिए हमेशा खुदावंदा तेरे प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करते हैं खुदावंदा, तेरे खुदावंदा वचन के ऊपर विश्वास करते हैं खुदावंदा। जीवन बताने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। दाऊद के बारे में देखते हैं खुदावंदा, दाऊद भी अपने हाथ में लाठी लिए हुए खुदावंदा प्रभु जी और गोलियत का सामना किया खुदावंदा प्रभु जी। इसी प्रकार खुदावंदा प्रभु जी हमारे हाथों में लाठी लिए हुए खुदावंदा, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लिए हुए खुदावंदा, शैतान गोलियत के खुदावंदा प्रभु जी सामना करते हुए खुदावंदा प्रभु जी उसके ऊपर जय पाने के लिए खुदावंदा तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। खास करके खुदावंदा प्रभु जी जो लाठी जब जो खुदावंदा संदूक में रखी गई तो उसके द्वारा खुदावंदा प्रभु जी ओ खुदावंदा एक खुदावंदा उसमें कलियां ने फूट निकले करके फूल लगे खुदावंदा, पक्के बादाम निकले खुदावंदा, हमारे अंदर खुदावंदा एक जी उठने वाली खुदावंदा पुनरुत्थान की खुदावंदा आशा को दिखाता। इसलिए हम दिन प्रतिदिन खुदावंदा पुनरुत्थान की आशा में खुदावंदा बढ़ते जाने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंदा प्रत्येक खुदावंदा हमारे लिए खुदावंदा सिंह यरीशलेम के द्वारा खुदावंदा जो हमारे लिए रखा हुआ खुदावंदा वो भी लाठी के द्वारा उसका नाप को खुदावंदा प्रभु जी किया जा रहा है खुदावंदा। इसलिए हमें खुदावंदा हमेशा और लाठ एक खुदावंदा प्रभु जी तेरी प्रतिज्ञा के ऊपर खुदावंदा तेरी सामर्थ्य के ऊपर दर्शन खुदावंदा संतों की संगति में रह के खुदावंदा प्रभु जी हमें खुदावंदा प्रभु जी उस खुदावंदा सिंह यरीशलेम में पाए जाने के लिए खुदावंदा तेरी झूठ में शक्ति के द्वारा खुदावंदा पाए जाने के लिए खुदावंदा तुम्हारी सहायता करने के लिए तेरे से दुआ करते हैं। तूने हमें सांपों को विषयों को रोकने का अधिकार दिया खुदावंदा, शत्रु की सेना के ऊपर खुदावंदा प्रभु जी शत्रु के खुदावंदा ताकत को रोकने का अधिकार दिया खुदावंदा। इसलिए खुदावंदा हमेशा इन प्रतिज्ञा को विश्वास करते हैं खुदावंदा, शत्रु के ऊपर जय पाने के लिए खुदावंदा तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। हम वचन सुनने वाले नहीं वचन के अनुसार हमारे खुदावंदा उस खुदावंदा अनुभव करने के लिए खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा प्रभु जी अभ्यास में लेकर आने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। खास करके खुदावंदा प्रभु जी पूरा में एक खुदावंदा पूरा सप्ताह खुदावंदा अपने बच्चों को खुदावंदा अपने पंखों के नीचे छिपा कर रखने वास्ते मदद करना चाहिए। खास कर संडे स्कूल के सेवा का बोझ उठाना चाहिए, जवेश मीटिंग का बोझ उठाना चाहिए, हमारे फेतम के काम का बोझ उठाने के लिए भी तेरे से दुआ करती है। देश में भी शांति देने के लिए मदद करना चाहिए, अगुए लोगों को संभालने के लिए मदद करना चाहिए। तेरे जो साथ हमारे लोगों को साथ रहने के लिए मदद करो, पवित्र करो, तेरे आगमन के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah.